Assalamu alaikum and a very good evening to all. I'm seeing that students have just started joining the session. Thank you, Aisha, for playing this video showing the journey of AMP from the past 14 years. Let's start today's session. AMP stands for the Association of Muslim Professionals, which is a non-profit organization and is registered in India, USA, UK, and Australia. AMP is a platform for all Muslim professionals and volunteers to share their knowledge, intellect, experience, and skills for the overall development of not just the community, but also the society at large. AMP's mission is to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and the nation as a whole. It has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030. It has a vision to be a model community which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. AMP flagship projects. It includes the Employment Assistance Cell, the Employability Training Program, AMP Zakat Fund, AMPowerjobs.com, and the skill training programs. Other AMP flagship projects, they include the highest education scholarship guidance, the international education guidance, and also the education excellence awards, and also the social excellence awards that is given to the NGOs. The next slide. Coming to the achievements of AMP. AMP under the Employment Assistance Cell has conducted around 350 plus job fairs and job drives and brought 70,000 plus candidates on board. And through this cell, the Employment Assistance Cell, around 30,000 plus candidates have become employed. We have the AMPowerjobs.com, where around 61,000 plus candidates have registered for 10,000
plus open vacancies, and around 400 plus candidates have been selected through this portal. We also have the indiamentors.com, wherein around 266 plus senior industry professionals are registered as mentors. And it has been conducting and actively running mentorship programs. The next slide. One of the major flagship projects of AMP is the School Development Program, as we call it as the SDLs. The school development programs provide wholesome guidance to higher secondary school students for career planning, self-development, and value education. AMP, it also conducts teachers training and parenting workshops through this school development program. Today, we are attending the second session of a series of 12 career guidance lectures conducted by the AMP under this school development program. Not to forget, this school development program has benefited around 2.81 lakh plus students through the school development lectures, also called as the SDLs. We have the AMP National Talent Search Examination, NTS. This is a national level competition which is organized for the school, junior and senior college students. The objective of this National Talent Search Examination is to increase and reward the students' general awareness and identify the brightest students to support and nurture them. We have an explicit app, the AMP mobile app called as the Champion. Through this app, students are benefited by AMP's numerous programs like career counseling, scholarship guidance, employment training, financial assistance for higher education, and for guidance to admissions in foreign universities. AMP intends to keep every Indian student connected through Champion app in future. Dear students, you can also download this Champion app on your mobiles with the help of the Play Store. Here, I would like to inform the students who are attending today's session that you do have an opportunity to participate in the national level competition, the NTS, and then win prizes in this competition. How can you support AMP? Being students, you can extend your support to AMP as volunteers. So you can participate in our projects, support us in our drives, the job drives, campaigns, and other activities. You can also become donors by giving a helping hand, by funding our projects, by providing services, and also infrastructure for our projects. By supporting AMP, you are supporting the community. The next slide. To join AMP, visit www.ampindia.org, join AMP. AMP not only has its presence offline, but it also has its presence on the social media like the Facebook, the Instagram. Handing over the session to the speaker, I would like to introduce the speaker of the day, Mr. Amir Ansari. Mr. Amir Ansari, sir, is the principal of Madni High School, Mumbai, and is closely connected with the students. He is a professional career counselor with more than 15 years of experience in the field of education and counseling. We are privileged to have Mr. Amir Ansari as the speaker for the second session of the career guidance seminars conducted by the AMP for the benefit of the students and their parents. Today's session is on the topic careers in life sciences and medicine. Ansari sir, a warm welcome to you on behalf of the entire fraternity of the Association of Muslim Professionals. Before handing over the session to Ansari sir, I would like to make a humble request to the attendees to post their questions or doubts, if any, in the QA box. The speaker will answer all your queries at the end of his talk. Over to you, Ansari sir. Thank you. Assalamu alaikum.
and good evening to all. First of all, I thankful to AMP team for inviting me to interact with the students. Hope I'm able to मैं आपको सबको सुनाई दे रहा हूँ. ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करियर इन मेडिसिन एंड लाइफ साइंस एंड कोर्सेज अदर देन engineering and architecture and all. So more than 80 students are there, 80 participants are there. So we will start with our slideshow so that we can discuss easily about the career in medicine and all. So मेरे ख्याल से सारे बच्चे जो आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप पेन और कॉपी नोट डाउन करने के लिए रखें अपने पास. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी कोर्सेज की डिटेल्स, तो आप नोट करें. और दूसरी चीज़, जैसा मैम ने कहा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर जो है वो उसको भी नोट डाउन करें ताकि वक्त मिलते आपको वो क्वेश्चंस को आप रेस कर सके और उसके आंसर फाइंड आउट कर सके. तो हम लोग जो है यहाँ से शुरू करते हैं कि हम लोग अगर करियर इन मेडिकल साइंस और लाइफ साइंस इस फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोगों को 10th स्टैंडर्ड के बाद में 11th साइंस और 12th साइंस, ये दो साल हमको साइंस स्ट्रीम से आगे जाना होगा. तो मैं भी इंटरेक्शन का मौका किस तरह से होगा पता नहीं मुझे, बट ये क्वेश्चन अपने आप से सारे स्टूडेंट्स पूछें कि वाई साइंस स्ट्रीम, आपको साइंस स्ट्रीम में क्यों जाना है और क्या करना है, क्यों आपको साइंस स्ट्रीम का चॉइस करना है. या अगर आपने आज मेडिकल फील्ड या लाइफ साइंस के टॉपिक को देखकर आपने एंट्री की है आज के सेमिनार के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में क्यों आया कि हम लोग जो है वो लाइफ साइंस या मेडिकल साइंस या इस तरह की जो फील्ड्स है प्योर साइंस, उसमें हमको करियर करना है. क्योंकि जब तक इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, आप शायद अच्छे से जो है वो इस फील्ड के अंदर जो वेरियस करियर ऑप्शंस है उसके अंदर एक्सेल नहीं कर पाएंगे. तो साइंस स्ट्रीम जनरली जो स्टूडेंट्स लेते हैं उनको हम लोग कुछ चीज़ें बताते चलें कि सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड के वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड साइंस, मैथ्स और उसके अलावा हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस भी पढ़ते हैं. तो बेसिकली 9th-10th में हम लोग जो स्कूल में जो सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3 सेक्शन होते हैं. एक लैंग्वेज का पार्ट होता है, एक सोशल साइंस का पार्ट होता है और एक सब्जेक्ट का पार्ट होता है जो है मैथ्स और साइंस का ग्रुप. तो अगर आपका लाइकिंग ये 3 कैटेगरी के अंदर अगर आपको ग्रुप में अगर आपका इंटरेस्ट पे जानने की कोशिश की जाए कि आपका इंटरेस्ट कौन से ग्रुप की तरफ ज्यादा है, मतलब लाइफ साइंस, साइंस और मैथ्स की तरफ ज्यादा है या लैंग्वेजेस की तरफ ज्यादा है या सोशल साइंस की तरफ ज्यादा है, तो उसमें अगर आपका आंसर मैथ्स और साइंस है तो आपके लिए आगे चलकर जो करियर ऑप्शंस होंगे वो साइंस स्ट्रीम को लेकर ही होंगे. तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के लिए अपने आप को ठीक ठाक महसूस करते हैं कि यस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइंस सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो एक चीज होती है इंटरेस्टिंग लगना. दूसरा, आप क्वेश्चन अपने आप से करें कि इंटरेस्ट लगने के साथ साथ क्या साइंस और मैथ्स में या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में, ये चारों सब्जेक्ट्स में आपका अब तक का स्कूल का रिकॉर्ड क्या रहा है, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, जब जब इसके एग्जाम्स हुए हैं तो आपको कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं. क्योंकि किसी चीज का अच्छा लगना और उसमें वाकई अच्छा होना, दोनों में फर्क है. जैसे हम लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है, सिंगिंग बहुत पसंद है, स्विमिंग बहुत पसंद है, लेकिन पसंद आने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि मैं उस फील्ड का बंदा हूं और वो मुझे उस फील्ड में आगे करियर करना चाहिए. तो थोड़ा सा
जब आपके एग्जाम्स हुए साइंस को लेकर, मैथ्स को लेकर, या जब जब स्कूल्स के कॉलेजेस के एग्जाम हुए, तो आपका स्कोर कार्ड देखिए आप प्रीवियस रिकॉर्ड में कि क्या आपके साइंस और मैथ्स के मार्क्स अच्छे थे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना जरूरी है वो ये कि साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कुछ खास एबिलिटीज जो है वो होना जरूरी है। जैसे वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर होना चाहिए, जानने की ख्वाहिश के क्या, क्यों, कैसे, कब ये चीजें हो रही थी, कैसे हो रही थी, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो गेम के पीछे किस तरह का सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, इसमें कलर्स कैसे बदल रहे हैं, पिक्चर कैसे मोशन में जा रही है। तो ये जो क्वेश्चनिंग क्यूरियोसिटी वाली जो चीजें हैं, उसके बाद में आप सोचिए कि आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स है क्या। क्या आप जो है वो बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे कुछ नतीजा अखज़ करते हैं, उससे कुछ इन्फ्रेंसेस लेते हैं। और तीसरी चीज जो है वो चीजों को एनालाइज करना, मतलब एनालिटिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, चीजों को समझना, उसको एनालाइज करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेडिकल साइंस में या लाइफ साइंस में करियर करना चाहते, प्योर साइंस में करियर करना चाहते, तो जरूरी है कि आप अपने आप को इन 3 पैरामीटर्स पे चेक करें कि पहला आपका इंटरेस्ट मैथ साइंस में है, दूसरा आपके मार्क्स मैथ साइंस में अच्छे हों, और तीसरा ये कुछ एबिलिटीज, उसके अलावा भी कई एबिलिटीज हैं, बट ये क्यूरियोसिटी, खासतौर पे ऑब्जर्वेशन स्किल और एनालिटिकल रीजनिंग अगर आपके अंदर है तो आपके लिए साइंस फील्ड जो है वो बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में साइंस स्ट्रीम जब आप 11th-12th से जाते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, अलोन महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 4 किस्म के साइंस हैं, जिसमें एक नॉर्मल साइंस जिसको जनरल साइंस बोलते हैं, दूसरा जो है वो बाइफोकल साइंस होता है 11th-12th के अंदर, तीसरा जो है वो एफसीवीसी या वोकेशनल साइंस होता है, और चौथा जो है वो होम साइंस होता है। तो इसमें भी आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, बल्कि कैटेगरी वाइज अब थोड़ा टाइप ऑफ साइंस टीम तलाश कर लें क्या है क्या नहीं, और उसको बाइफरकेट करके आप अपने हिसाब से जनरल साइंस में जाएंगे तो आपके लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। 2 आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स होंगे और 4 आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। अगर आप साइंस टीम का सोच रहे हैं तो ये जो आपको स्लाइड पर नजर आ रहा है, ये और इस तरह की कई फील्ड्स आपको आगे 12th के बाद में करियर ऑप्शंस के लिए मिल सकती है, जिसमें इंजीनियरिंग, रिसर्च, एविएशन, मारीन, मेडिकल, वेटरनरी साइंस, ओशियनोग्राफी, पैरामेडिकल साइंसेस के कोर्सेज है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर के कोर्सेज है, आर्किटेक्चर, स्पेस साइंस, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, उसी तरह से मशीन लर्निंग है, और दूसरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एयरफोर्स और नेवी है, रोबोटिक्स है। ये सारे फील्ड्स जो है वो साइंस से रिलेटेड फील्ड्स है। अब एक चीज याद रखिए, अगर आप लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, प्योर साइंस के बारे में सोच रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि आपके लिए 12th के बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये बात सभी बच्चे ध्यान से नोट करें, पेरेंट्स भी नोट करें कि अब किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स के बेस पर नहीं होता है। हमारे 10th में और 12th में जो भी मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से होगा, उस मार्क्स को एक तरह से कुछ उसके सर्टेन पार्ट्स देखे जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पार्ट्स या मार्क्स देखे जाएंगे कि उसमें आपने कितना स्कोर किया है, और दूसरा पूरा का पूरा दारोमदार होता है एंट्रेंस एग्जाम पर। तो इसका मतलब सिर्फ 12th के बेस पर एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ 10th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन नहीं होगा किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में, बल्कि कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम्स को आपको देना होगा। 12th एग्जाम जब आप साइंस टीम के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको पासिंग मार्क्स के बारे में सोचना है। वैसे तो सभी बच्चे हमारे बहुत होशियार है और माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बट ये बात याद रखिए कि बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के चक्कर में ये जो 12th के बोर्ड के एग्जाम का जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको भूल जाते हैं। और 12th में 100 मार्क्स का अगर कोई सब्जेक्ट का पेपर है तो 35 मार्क्स एक्चुअल पासिंग परसेंटेज होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। लेकिन ये बात याद रखिए कि किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन से पहले
अब जो है वो आपका पासिंग परसेंटेज कुछ भी हो, बट 12th में आपका एग्रीगेट परसेंट 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो ये मिनिमम टारगेट है कि नॉट लेस देन 50% 12 साइंस में आपका होगा। और खास तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, ये चारों सब्जेक्ट्स में आप 50% से ज्यादा मार्क्स इंडिविजुअली भी आप स्कोर करेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर। और इसमें आसान है बहुत 50% स्कोर करना, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे बोर्ड में 30% जो है वो ओरल एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, और 70% थियरी बेस होता है। तो एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। टाइम कम है, हम लोग थोड़ा सा मेडिकल कोर्स के बारे में मालूमात लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जो साइंस टीम में जाते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, वो लोग जो है कहीं ना कहीं दिमाग में मेडिकल के कोर्सेज होते हैं उनके जहन में कि डॉक्टर बनना है या सर्जन बनना है, उसी तरह से जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, पेडिट्रिशियन बनना है। तो ये ख्वाब, साइकेट्रिस्ट बनना है, इस तरह का ख्वाब लेकर जो है वो 10th में वो कोशिश करते हैं कि वो 11th 12th साइंस में अपीयर करे और उसके बाद में जो है वो मेडिकल फील्ड के अंदर करियर करे। तो ये जो 5 कोर्स आपको नजर आ रहे हैं, MBBS, BDS, BMS, BHMS और BUMS, these are the 5 main courses which are called as medical courses after completing out of ये जो 5 कोर्सेज है उसमें से कोई भी एक कोर्स को अगर आप कंप्लीट करते हैं, इसमें से सिर्फ BDS 5 साल का कोर्स है, अदरवाइज सारे बाकी के 4 कोर्स 5.5 साल के कोर्स है, जिसमें से एक्चुअल पढ़ाई 4.5 साल की है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। मतलब एक्चुअली आपको जो कुछ भी पढ़ा है वो पेशेंट्स के साथ में बाद में इंटर्नशिप के करना होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस करनी होती है नर्सिंग होम में, मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर। अब ये पांचों के पांचों कोर्सेज में एडमिशन पूरे इंडिया लेवल पे अगर आपको एडमिशन लेना है, ये MBBS कोर्स को मेडिकल कोर्स बोलते हैं, इसको डेंटल कोर्स कहा जाता है, और ये 3 कोर्स को आयुष के कोर्सेज कहा जाता है। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, BAMS, BHMS और BUMS के लिए एक वर्ड कॉमनली यूज होता है, वो है आयुष के कोर्सेज या आयुष मिनिस्ट्री के कोर्सेज। इसको डेंटल कोर्स और इसको MBBS। पहले ऐसा था कि सिर्फ MBBS के लिए और BDS के लिए एडमिशन के लिए 2019 में, पहले 2016 में नीट आया, बाद में 2019 से जो है वो नीट कंपलसरी हुआ। तो मेडिकल में एडमिशन के ये 2 कोर्सेज के लिए नीट कंपलसरी था, लेकिन बाद में पूरे इंडिया लेवल पे किसी भी बच्चे को अगर इन 5 कोर्सेज में एडमिशन लेना है, इसके अलावा 2 कोर्स और है, एक सिद्धा मेडिसिन है और एक नेचुरोपैथी है, जो महाराष्ट्र स्टेट में प्रैक्टिस उसका नहीं है बहुत ज्यादा, और कोई गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी नहीं है। अदरवाइज पूरे इंडिया में कई जगह पर सिद्धा मेडिसिन और योगा साइंस और नेचुरोपैथी के भी कोर्सेज है। टोटल 7 कोर्सेज जो है मेडिकल के कोर्सेज कहलाते हैं। लेकिन इन सब के में एडमिशन के लिए प्लस एक कोर्स और है जिसका नोटिफिकेशन लास्ट ईयर आया, वो है BSc नर्सिंग। ये 6 कोर्सेज के लिए आपको नीट में अपीयर करना और कम से कम जो है वो कुछ मिनिमम 50% के मार्क्स को स्कोर करना जरूरी है। अब मेडिसिन में जो टॉप प्रायोरिटी पे जो कॉलेज या कोर्स कहलाता है वो MBBS है, बैचलर डिग्री का ये कोर्स है। ये 5.5 साल का कोर्स है। अगर इंडिया में MBBS डॉक्टर का रेशो अगर पॉपुलेशन से देखे तो 1:1000 है, मतलब 1000 की पॉपुलेशन पर एक MBBS डॉक्टर है, जो बहुत ही कम है। जो डेवलप्ड नेशन है, जो अच्छी कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जो और डेवलप्ड कंट्रीज में जिनका शुमार होता है, उन सब में जो है ये अराउंड जो है वो 300-400 पर जो है वो एक मेडिसिन MBBS का डॉक्टर होता है। बट हमारे वहाँ ये पॉपुलेशन का रेशो बहुत ज्यादा है। तो MBBS जो भी बच्चा करता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज, ये एवरग्रीन फील्ड है जिसको हम लोग करियर के लिए बोल सकते हैं। अपन नंबर गेम समझा दूं आपको, पूरे इंडिया में प्यारे बच्चों जो भी ये हमारे प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, पूरे इंडिया में तकरीबन जो है वो 16-17 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, और MBBS की सीट पूरे इंडिया के अंदर तकरीबन जो है वो 80-85 हजार की सीट्स है। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पर। मैं यहाँ पर जो है वो कुछ बात करता चलूं कि इंडिया के अंदर जो है वो कितनी सीट्स है। ये तकरीबन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर 30,000 के करीब है, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर 36,000 सीट्स है। उसके अलावा कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज है
जिनको जो है वो डीम स्टेटस हासिल है, तो उनके अंदर भी कुछ कॉलेजेस में एमबीबीएस के जो है वो सीट्स अवेलेबल है। अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो यहाँ पर अभी फिल वक्त सबसे ज्यादा जो कॉलेजेस या सबसे ज्यादा मैं आपको स्टूडेंट्स की तादाद बताऊं, महाराष्ट्र स्टेट इज द स्टेट वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर अपियरिंग फॉर नीट एग्जाम। पूरे 16 लाख में से 4.5 से 5 लाख बच्चे जो है वो नीट एग्जाम में अकेले महाराष्ट्र स्टेट से जो है वो अपियर करते हैं, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। तो यहाँ पर पिछले 5 सालों के अंदर जो है वो तकरीबन 7 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस जो है वो ऐड होते चले गए हैं। हर साल एक एक दो मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो गए हैं। तो लास्ट ईयर भी 3 मेडिकल कॉलेजेस हमारे ऐड हुए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। टोटल जो है वो अब 28 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस है। अराउंड 4630 सीट्स है। इसमें भी याद रखिए रिजर्वेशन होता है 50%। तो जो लोग ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इस सीट्स का नंबर को आधा कर लीजिए, मतलब महाराष्ट्र में 4.5 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो सिर्फ 4600 सीट है, और अगर ओपन कैटेगरी है तो 2300 हो जाएगी वो। अगर प्राइवेट कॉलेजेस देखिए तो ये भी प्राइवेट कॉलेजेस पहले 15 थे, अब तकरीबन जो है वो पिछले 2 साल के अंदर 5 प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ गए एमबीबीएस के लिए। तो 2500 जो है वो तकरीबन 2570 सीट्स है। अब नीट एग्जाम जो है उसको स्कोर करना, उसको कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, इंडिया और इंडिया के बाहर कहीं से भी अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आपको नीट देना कंपलसरी है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनको आईएनआईज कहा जाता है, जिसका जिक्र आगे प्योर साइंस का जब मैं बताऊंगा तो उसका जिक्र आएगा। उसमें एम्स का शुमार होता है। एम्स जो है वो टॉप का मेडिकल कॉलेजेस का इसमें इसका शुमार होता है। आपने सुना होगा कोई भी पॉलिटिशियन बीमार होता है तो शायद हॉस्पिटल का नाम वहां पर आता है। तो ये जो एम्स में सबसे बेहतर तरीके की पढ़ाई होती है मेडिकल की, एमबीबीएस की। और आपको यकीन नहीं आएगा कि एम्स दिल्ली के अंदर जो कॉलेज की फीस है 1 साल की, वो सिर्फ 1630 रुपए है। और यहाँ पर टोटल जो हमारे कॉलेजेस हैं एम्स के, अभी पहले एक ही था, बाद में 6 एम्स और बने हैं पूरे इंडिया में। इस तरह से टोटल 7 या 8 जो है वो एम्स हो गए हैं। तो टोटल सीट्स जो है वो तकरीबन 2000 है। और जो टॉप रैंकर्स होते हैं इंडिया में नीट के अंदर 720 में से, वो बच्चे जो है वो सबसे पहले एम्स को टारगेट करते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर का कॉलेज है जिप्मर पौंडीचेरी, जहां पर तकरीबन 200 सीट्स है। यहाँ पर भी जो है वो टॉप का कॉलेज और नंबर 1 लेवल की पढ़ाई, और फीस बहुत कम, क्योंकि इन सब का शुमार जो है वो आईएनआईज में होता है। उसी तरह से जो है पहले नीट के जो एग्जाम है वो कंडक्ट करने वाली बॉडी सीबीएसई थी, और 2020 से जो है वो एनटीए ने पूरा कारोबार संभाल लिया है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंडिया के टॉप मोस्ट जितने भी एग्जाम्स होते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो एनटीए की आ गई है। चाहे जेडबल मेंस हो, एडवांस्ड हो, उसी तरह से जो है हमारा नीट का एग्जाम हो, या एनईटी जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी तरह से कई एग्जाम्स जो है वो एनटीए अभी कंडक्ट करता है। जो महाराष्ट्र स्टेट के हमारे बच्चे अगर ये सुन रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि महाराष्ट्र स्टेट के सारे मेडिकल कोर्सेज में, जिनको हेल्थ साइंस के कोर्सेज कहा जाता है, उसमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नीट के बेस पर होता है। अब ये स्लाइड को आप चाहे तो थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से वो कोर्सेज है जिनको हेल्थ साइंस के कोर्सेज कहा जाता है, जिसके नीट के बेस पर अगर आपका एडमिशन होता है तो कौन से कोर्सेज आपको मिलेंगे, जिसमें 5 कोर्स का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया था, ये जो 5 कोर्स है। उसके अलावा बीएससी नर्सिंग, बीपीटीएच यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, बीएसएलपी बैचलर ऑफ ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बीवीएससी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। उसी तरह से जो फार्मेसी का जो कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए जो ऑल इंडिया लेवल की सीट्स होती है, उसमें भी नीट का स्कोर को जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो ये 5 और उसके बाद में ये 5, 10 और 11, 12 कोर्सेज में एडमिशन आपको वो नीट के बेस पे मिलेगा।
नीट जो है वो आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है, और इसके लिए काफी कुछ जो है वो इसके अंदर हर साल कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है। और जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया गया है, और बहुत ज्यादा चेंजेस इसके अंदर आ रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स में चूंकि कोविड की वजह से बहुत सारे चेंजेस नहीं कर पाए, लेकिन अब जो है इसके अंदर चेंजेस आने के चांसेस है और भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अकेला नेशनल लेवल का एग्जाम है नीट यूजी, जो कि पेपर पेंसिल टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, पेपर पेन टेस्ट है। अदरवाइज सारे हमारे टेस्ट अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गए हैं, लेकिन नीट जो है वो इसमें आपको आंसर शीट मिलती है, क्वेश्चन पेपर अलग मिलता है, फिजिकल एग्जाम होता है, आपको राउंड स्कोर करना होता है, सर्कल को ब्लैक करना होता है, तो आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। बहरहाल हम लोग नीट की जो वेबसाइट है, अगर जो बच्चे 12 साइंस में, तो उनके लिए तो चांस अभी गया, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, 17 जुलाई को उनका एग्जाम्स है। बाकी जो बच्चे अभी 10 से 11 12 साइंस पढ़ेंगे तो 2 साल ये वेबसाइट को आप चेक करते रहे। और महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हमारा महासीटी सेल है और DMER ये वेबसाइट है दो, जिसके जरिए आपको आगे के एडमिशन प्रोसेस पता चलते हैं। मेडिकल साइंस में जो बहुत सारे कोर्सेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसको हम लोग BSc नर्सिंग बोलते हैं। ये दिखाई दे रहा है नर्सिंग वाला स्लाइड? जी सर, Yes, sir, it's नजर आ रहा visible. हाँ, तो ये जो नर्सिंग का कोर्स है, इसमें ज्यादातर हमारे बच्चियां ही जो है वो आगे बढ़ती हैं, और लोगों को शायद गलतफहमी है कि मेल नर्सेस नहीं होते। तो ये बात ध्यान में रखिए आप कि ओवरऑल इंडिया में और ओवरऑल ग्लोब में जो बच्चे चाहे मेल हो या फीमेल, नर्सिंग जो ये फील्ड के लोग हैं उनकी काफी डिमांड है। और ख़ास तौर पे इंडिया के बाहर जो है वो मेल फीमेल दोनों तरह के नर्सेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो बच्चे BSc नर्सिंग करते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है बनिस्बत मेडिकल फील्ड के। मतलब जहाँ पर भी बाहर इंडिया के बाहर जो डेवलप्ड नेशंस है उसमें अगर 100 से ज़्यादा कोई फर्म के अंदर एम्प्लॉयज है, तो वहाँ पर एक मेडिकल के बंदे को, हेल्थ केयर बंदे को रखना जरूरी होता है। तो डॉक्टर जो है वो टेम्पररी होते हैं, लेकिन जो पोस्ट नर्सिंग की पोस्ट होती है वो फुल फ्लेज जो है वो उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए 4 साल का कोर्स है। 12 साइंस के बाद में BSc नर्सिंग का कोर्स होता है। सेम कोर्स जो है वो 12 साइंस के बाद में कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है। अगर आपको नीट से बचना है, नीट एग्जाम आप इस साल नहीं अपियर कर रहे और आपको जो है वो फिर भी नर्सिंग फील्ड में जाना है, तो आपको बैचलर डिग्री का कोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो है वो आप डिप्लोमा कोर्स जो है वो 2 साल का कर सकते हैं। उसके अलावा 10 के बेस पे 3 साल का डिप्लोमा इन नर्सिंग का कोर्स भी मौजूद होता है। बट आप याद रखें कि कोई भी बड़े हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से खास तौर पे उसमें एडमिशन, उसमें एज अ जॉब आपको जाना है, तो आपको 4 इयर्स का ये जो बैचलर डिग्री है वो करके जाने पर ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में हमारे बहुत से बच्चे और बच्चियां नहीं जानते हैं, और नीट में स्कोर कम आता है या 550-600 मार्क्स नहीं ला पाते, तो वो लोग जो है वो फिर सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट या नीट के चक्कर में बार बार जो है वो अपने साल को जो है वो रिपीट करते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आपका स्कोर देखिए नीट के अंदर 150-200 आ रहा है, तो आप जो है वो 200 स्कोर पर अगर आपने अटेम्प्ट किया दोबारा, तो हम लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है कि मैक्सिमम 150 से 200 मार्क्स बढ़ते हैं, वो भी फुल फ्लेज 100% अगर कोई बच्चा देता है तो 400 मार्क्स आपके आएंगे, 350 मार्क्स आपके आएंगे, उस पर भी MBBS नहीं मिलने वाला है। तो 200 मार्क्स 150 मार्क्स पे जो फील्ड में एडमिशन मिल सकता है उनकी थोड़ा सा आपको मालूमात लेनी चाहिए। उसमें एक फिजियोथेरेपी का कोर्स है जो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल्स में ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं पेशेंट के, पर्टिकुलर जो है वो खास तौर पे एक्सीडेंट्स के बाद में, या कुछ बोन इशू होता है, मसल्स के इशू होते हैं, तो वो कुछ एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त इसकी डिमांड है। इंडिविजुअल आपकी अपनी प्रैक्टिस हो सकती है, आप जब चाहे वर्क कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल से जुड़ सकते हैं, या इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
पर सिटिंग आपको 200-300 रुपीज से 1000 रुपीज जो है वो आपको एक सिटिंग लेने का, पेशेंट को इलाज करने का, वहां पर एक्सरसाइज कराने का पैसा मिलता है। हम लोगों ने कई शहरों में महाराष्ट्र के देखा, खास तौर पे जैसे मुंबई से लग के भिवंडी है, भिवंडी के अंदर ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, लैंग्वेज पैथोलॉजी के जो पैरामेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो है ही नहीं, ना के बराबर है। तो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जो नीट के बेस पे इसमें एडमिशन होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक नर्स है जो इस बच्चे को कुछ हेल्प कर रही है, कुछ गेम्स वगैरह आपको लग रहा है तो ये कुछ मेंटल टाइप के गेम्स होते हैं या कुछ और खास तौर पे काउंसलिंग सेशंस है ये, जिसके जरिए ये बच्चे को जो वो हेल्प कर रही है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं आमतौर पे जो स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर बच्चों को हेल्प करते हैं, या उसके अलावा भी प्राइवेट प्रैक्टिस ये लोगों का होता है। उसी तरह से जो है वो लैंग्वेज स्पीच पैथोलॉजी, जो बच्चे बचपन से ही सुनने में और बोलने में तकलीफ होती है, हमारे मुंबई के अंदर एक बड़ा इंस्टीट्यूट है बांद्रा के अंदर, अलियावर जंग, उस इंस्टीट्यूट में ये ऑडियो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का कोर्स होता है ASLP के नाम से, वहां पर ये कोर्स मौजूद है। और आपको ये भी मैं बताता चलूं, अगर इस साल जो बच्चे 12th साइंस में है और उन्होंने नीट का फॉर्म नहीं भरा है, तो इस कोर्स में अगर एडमिशन के लिए वो ख्वाहिशमंद है, तो यहाँ पर जो बांद्रा में रिक्लेमेशन के अंदर जो हमारा अलियावर जंग मार्ग में जो इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर टोटल 40 सीट है, जिसमें से 25 सीट जो है वो उनका खुद का एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, उसके बेसिस पर मिलती है। 15 सीट में एडमिशन नीट के बेस पे होता है। तो 25 सीट्स के लिए अभी भी कॉलेज की सीट जो है वो खाली है, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसका 30 जून जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो आप अभी भी भर सकते हैं। 12 साइंस के वो बच्चे जिन्होंने इस साल नीट नहीं भरा है, उनके लिए एक चांस है। उसी तरह से ये ऑस्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स वाले जो बंदे हैं, ये देख रहे हैं आप, आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह, जो बहुत ज्यादा अभी इसके ताल्लुक से बहुत ज्यादा एडवांस जो है वो हो चुकी है टेक्नोलॉजी। खासतौर पे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है वो सेंसर्स के साथ में किस तरह से ये मूविंग हैंड्स और आर्टिफिशियल लिम्स बना रहे हैं, उस पर जबरदस्त काम हो रहा है आईआईटीज के अंदर, ट्रिपल आईआईटीज के अंदर। तो आप इसके अंदर जो है वो करियर कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज है जो बच्चे, अभी स्लाइड्स दिख रही है, नेक्स्ट स्लाइड। सर नजर आ रहे हैं तो ये सब कोर्सेज जो आपको नजर आ रहे हैं, इसमें जो बच्चे अभी इस साल नीट नहीं दिए हैं या नीट का फॉर्म नहीं भरे हैं और उनको लगता है कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम से दूर रहकर कुछ कोर्स में एडमिशन लेना है, तो दीज आर द सम वेरी गुड प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज, हम बोलेंगे इनको वोकेशनल कोर्सेज। लेके ये कोर्सेज करने के फौरन बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें DMLT CMLT है, फार्मेसी के जो कोर्सेज है उसमें एक कोर्स मैंने जो बी फार्म बताया, डी फार्म और बी फार्म में फर्क ये है कि फार्मेसी का बैचलर डिग्री में नीट की जरूरत है या सीटी की जरूरत है, जबकि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 12th के बेस पर एडमिशन होता है, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आप अपना मेडिसिन का कोई मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। उसी तरह से एक्सरे टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है। एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जो बहुत ही कम बच्चों को पता है, उस कोर्स का नाम है डेंटल मैकेनिक एंड डेंटल हाइजीनिस्ट। शायद बच्चों ने ऑटोमोबाइल मैकेनिक का नाम तो सुना होगा, लेकिन डेंटल मैकेनिक नहीं सुना होगा। तो ये जो हमारे दांत अगर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं या नकली दांत लगाते, तो जो नकली दांत बनते हैं, ये दांत बनाने वाले जो लोग होते हैं वो डेंटल मैकेनिक होते हैं। ये हर एक इंसान का कोई भी दांत अगर टूटता है तो उसके पूरी जो स्ट्रक्चर को देखकर पर्टिकुलर साइज और शेप का और पर्टिकुलर मटेरियल का दांत बनता है। ये हमारे मुंबई के अंदर जो है वो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है, वहां पर ये कोर्स चलता है। 10 सीट है इसकी, ये 10 सीट डेंटल मैकेनिक की है और 10 सीट जो है वो डेंटल हाइजीनिस्ट की है। डायरेक्टली 12th साइंस के बेस पे एडमिशन मिलता है। उसी तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद और नागपुर के अंदर भी जो है ये कोर्सेज अवेलेबल है, और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, खासतौर पर डेंटल कॉलेजेस के अंदर ये कोर्सेज अवेलेबल है। उसी तरह से रेडियोलॉजिस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, कार्डियक मशीन टेक्नीशियन है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन है, उसी तरह से एंडोस्कोपी टेक्नीशियन है। इस तरह के कई बंदे हैं जो पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। मैं अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
देखिए लाइफ साइंस में बहुत सारे दूसरे कोर्सेज आते हैं जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे वो बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट है और मेडिकल में करियर करने के साथ साथ वो सोच रहे हैं कि अगर मुझे प्योर साइंस में कुछ करियर करना है तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है प्योर साइंस में करियर करने की। और इंडिया जो है वो चूंकि डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशनों के पीछे चल रहा है, तो बहुत सारी जगहों पर इंडिया जो है यहाँ पर तरक्की करते हुए, खास तौर पे हमारा जो रिसर्च का शोबा है उसमें हमारे बच्चे, साइंस फील्ड के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो हमारे वो बच्चे जो थोड़ा सा 12 साइंस के बाद में अगर उनको मेडिकल फील्ड नहीं पसंद आ रही है या एडमिशन नहीं मिलता है, तो वो इन कोर्सेज के बारे में, इन इंस्टीट्यूशन के बारे में जरा सोचें और सुने, जिनका नाम मैंने पहले जिक्र किया था, INIs का, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च इन साइंस। मैं आपको थोड़ा सा ये बात बताता चलूं कि इंडिया के अंदर जो है 7 जो है वो आइजर है, 7, पहले 5 थे और अब जो है वो 7 हो चुके हैं, जिनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिसर्च इस तरह के नाम से पुकारा जाता है। उसी तरह से कुछ इंस्टीट्यूशन है जिनका नाम आपने सुना होगा, TIFR है, BRC है, ISC बेंगलोर है, DRDO है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस को जो है वो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रिसर्च इन साइंस कहा जाता है। तो हमारे वो बच्चे जो मेडिकल फील्ड में ना जाते हुए रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे जो है वो इन फील्ड को, इन इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर सकते हैं 12 साइंस के बाद में। INI, जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर 50,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 165 अदारे ऐसे हैं, इंस्टीट्यूशन ऐसे जिनको INI का दर्जा हासिल है, जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा जाता है। अब सोचिए 50,000 कहाँ और 170 160 नंबर, कितना डिफरेंस है। बट ये याद रखिए, हिंदुस्तान का जो एजुकेशन का बजट जो हर साल बनता है उसका 50% पैसा जो है वो इन 160 अदारों में खर्च होता है, जबकि बाकी का जो पैसा है वो 50,000 60,000 इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से, फैकल्टीज के एतबार से और बाकी सारे लेबोरेटरीज और सारी फैसिलिटीज के हिसाब से जबरदस्त जो है वो चीजें मौजूद होती है, फीस भी कम होती है। तो हिंदुस्तान के अंदर, जैसा मैंने कहा, 2005 में इन अदारे को कायम किया गया, जिसको पहले 5 थे, अब 2017 में जो है वो 2 और बढ़ गए। तो इस तरह से टोटल 7 आइजर हैं। आइजर पुणे, आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता, आइजर मोहाली, आइजर त्रिवेंद्रपुरम और बरहमपुर, उसी तरह से तिरुपति। ये जो 7 इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें अगर आप करियर करते हैं तो ये बात ध्यान में रखिए, एक आइजर को बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का खर्च बना था 2005-7 में जब ये तैयार हुए तब बनकर। और इसकी लागत इतनी है, इसका मतलब ये बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है। दूसरी चीज के यहाँ पर फैकल्टी जो है वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के टॉप के साइंटिस्ट हैं। इंडिया में जो भी साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है उसमें जो लोग रिसर्च के काम में आगे हैं वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और तीसरा ये कि यहाँ पर जो है वो पढ़ाई का सिस्टम 70% प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो है वो काम है, और 30% आपको सिर्फ जो है वो मिलेगा, क्या कहेंगे, थियोरी वाला पार्ट, मतलब करके पढ़ना है, ऐसा ही अदारा है। और इसमें एंट्री चाहिए तो आप जो है वो 3 तरह से आप एंट्री इसमें पा सकते हैं, या तो KVPY, किशोर वैज्ञानिक योजना प्रोत्साहन योजना, या JEE एडवांस, या फिर सेंट्रल या स्टेट बोर्ड का जो SCB होता है उसके जरिए IAT यानी क्या कहते हैं, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो जिसके जरिए आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर 3 किस्म के कोर्सेज अवेलेबल है। BSMS 12वीं के बाद जो है वो इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा। डायरेक्टली 12th के बाद आप MSc करके बाहर निकलेंगे, या फिर जो बच्चे BSc के वो डायरेक्टली MSc PhD कर सकते हैं, या डायरेक्टली MSc के बाद में PhD हो सकता है। आप लोग जो है वो वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं आइजर की। फील्ड वर्क जो है वो इस साल इसका एग्जाम जो है वो 3 जुलाई को होने वाला है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपने KVPY नहीं दिया है, JEE आप नहीं दे रहे हैं इस साल, तो IAT के जरिए अभी फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट इसकी 15 जून है। हमारे वो बच्चे जो अभी साइंस लेंगे 11th 12th में, तो उनके लिए याद रखें कि अगर आप रिसर्च के मैदान में जाना चाहते हैं, आप KVPY का फॉर्म जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर, इसका नेशनल डेलीज के अंदर एक इश्तिहार आएगा जिसमें आप जो है वो
किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के जरिए SX स्ट्रीम में आप अपना एनरोल कर सकते हैं। एक तरह की स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है, और 12वीं में अगर आपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपने ये एग्जाम को अपियर किया, स्कोर किया, तो आप इन बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह से दूसरा एक इंस्टीट्यूट है, 2 इंस्टीट्यूट का उसमें शुमार होता है। जैसे आइजर 7 है, वैसे नाइजर 1 है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस, जिसको शॉर्ट में CBS कहा जाता है। ये दोनों अदारे भी 12 साइंस के बाद में BSMS का कोर्स चलाते हैं। तो हमारे वो बच्चे जो 12 साइंस के बाद में मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहते, आर्किटेक्चर, फार्मेसी में नहीं जाना चाहते, वो इन दोनों इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर सकते हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आपको एक खास एग्जाम देना होगा, जिसको नेस्ट कहा जाता है, NEST, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके लिए 12th के अंदर 60% मार्क्स चाहिए, और उसके अलावा जो है आपको नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उसी तरह से इस साल जो है वो 18 जून को ये एग्जाम होना है। इसके फॉर्म्स जो है वो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, और अभी सिर्फ एग्जाम होना बाकी है। उसी तरह से एक इंस्टीट्यूशन है IST, जो इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। जब इंजीनियरिंग का लेक्चर होगा तब इसके बारे में शायद आपको बताया जाएगा। बट एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ISC, जो बच्चे लाइफ साइंस में या फिर प्योर साइंस में करियर करना चाहते हैं। ये अकेला इंस्टीट्यूट है जिसका शुमार जो है वो ग्लोबली हम कहेंगे कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला वन ऑफ द इंस्टीट्यूट है ISC बेंगलुरु, जिसके जरिए जो है वो कई एग्जाम्स भी अपियर किए जाते हैं। बहुत सारे नेशनल लेवल के कंपटीशन ये इस इंस्टीट्यूशन के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, और उसके अलावा कई कोर्सेज हैं जिसमें यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। ये सारे फील्ड्स में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, ये सारे फील्ड्स के अंदर जो है वो ISC बेंगलुरु के अंदर कोर्स मौजूद है 12th के बाद में। यहाँ पर एंट्री के लिए 4 रास्ते हैं, या तो JEE मेंस के जरिए जाए, या तो नीट के जरिए जाए, या JEE एडवांस, या KVPY के जरिए। ये चारों में से कोई भी एक रास्ते से आप ISC बेंगलुरु में एडमिशन ले सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, मुंबई कोलाबा के अंदर मौजूद है। यहाँ पर भी कोर्स चलता है, बच्चों को पता नहीं है, शायद वो ये समझते कि इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ पर MSc के बाद में जो है BSc के बाद में, सॉरी, MSc का कोर्स मौजूद। तो वो बच्चे जो MSc करना चाहते हैं, या PhD करना चाहते हैं, या इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं, वो इस इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे इंडिया के अंदर कई बड़े अदारे हैं जिसको कौमी अदारे कहा जाता है, जिनमें का INI, जिसको मैंने कहा, IITs हैं, IIITs हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशन में BSc के बाद में एडमिशन का अलग अलग जो है वो एग्जाम्स के जरिए एंट्री होती है, जिसमें से एक जेस्ट एग्जाम है, दूसरा जैम नाम का एक एग्जाम है। तो हमारे कई बच्चे जो 12 साइंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, वो BSc करते हैं, और BSc करने के बाद पूछते हैं कि अभी क्या करें। तो BSc करने के लिए जब आप सेकंड ईयर कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो थर्ड ईयर में आने से पहले ये सारे इंस्टीट्यूशंस की डिटेल आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इंडिया के अंदर, उन सारी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ में अभी शेयर की, जो मेरे ख्याल से टाइम काफी हो चुका है। बहुत सारी कोर्सेज अभी मेरे पास अभी भी बाकी बचे हुए हैं, लेकिन मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, वो आपको मौका दे रहा हूँ, क्योंकि कोर्सेज के डिटेल निकालना बहुत ही आसान है आज की तारीख में। कोई भी इंफॉर्मेशन कि ये कोर्स कहाँ चलता है, बायोलॉजी का कोई अगर PhD आपको करना है, या अजीब व गरीब कुछ कोर्सेज के नाम अगर मैं आपको बताऊं कि मेकाट्रॉनिक्स है, एवियोनिक्स है, एविएशन है, उसी तरह से 2-3 फील्ड का अभी जो है वो कॉम्बिनेशन चल रहा है। जैसे मेडिकल लॉ आपने नाम सुना होगा, मतलब लॉ भी है और मेडिकल है। उसी तरह से मेडिकल टूरिज्म है। तो आज का जो जमाना है वो बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। तो वो स्पेशलाइजेशन के इस जमाने के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा फोकस रह के अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, टारगेटी अंदाज में आगे बढ़ना पड़ेगा कि मैं कौन सा कोर्स करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, और कैसे करना चाहता हूँ। वो पूरा का पूरा एक रोड मैप बनाना होगा, और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। तो खास तौर पे कुछ कोर्सेज जो लास्ट में बताऊं, पैरा मेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इसमें बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाता है। वो सारे कोर्सेज लाइफ साइंसेज के कोर्सेज में आते हैं, और सारे बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे बॉम्बे के अंदर VJTI है वहां पर, उसी तरह बॉम्बे के अंदर IIT है। ये सारे इंस्टीट्यूशन में बायोलॉजी को लेकर
और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लेकर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स को लेकर एमएससी पीएचडी लेवल तक के डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है। इन सब फील्ड्स में आप करियर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप सभी के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको अपने आने वाली जिंदगी में कामयाब करे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। थोड़े से क्वेश्चंस हैं Q&A बॉक्स में, so I think I'll read out the questions and you can just answer them. The first question is asked by Fatima Azmi. Can you tell about career in biotechnology? That is after that graduation में BSc biotechnology. आपका आवाज ब्रेक हो गया, मैं वापस बोलिए। अच्छा, Fatima Azmi has a question. Can you tell about career in biotechnology? BSc बायोटेक्नोलॉजी कर रही है शायद वो बच्ची। जी जी जी, तो उसके बारे में जी। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का जिक्र मुझे करना था, वो रह गया, छूट गया। बायोटेक्नोलॉजी एक पूरा का पूरा प्योर रिसर्च फील्ड है, जिसमें बच्चों को जो है वो आप ये समझिए कि खुद से पढ़ना है। जैसे आपने अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के कोर्सेज 12th के बाद में अभी इंटीग्रेटेड शुरू हुए, राइट, तो ये कोर्सेज में अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एडमिशन ले लेना चाहिए, बट इसकी जो फैकल्टीज हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो उतने स्मार्ट अवेलेबल नहीं है, उसी तरह से उतने क्वालिफाइड लोग नहीं है। सिमिलर केस है बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी हुआ है कि पिछले 10 सालों के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसका बहुत ज्यादा बूम हुआ, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी चाहिए था, जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो चीजें की तैयारी चाहिए थी, वो शायद हमको नहीं मिली है। तो बायोटेक में वही बच्चे जाए जिसमें रिसर्च का मादा हो, रिसर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे कम से कम एमएससी से नीचे कुछ भी नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको खुद से बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी, बहुत सारे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल जो है वो प्लेटफॉर्म्स को यूज करना होगा, ताकि आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन रखें। और यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी रिसर्चर की भी है। और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँ कि इंडिया के अंदर रिसर्च के मैदान में जॉब्स है, बट सैलरी उतना नहीं है। तो थोड़ा सा क्या कहेंगे, थोड़ा मैं इसको 5 में से 3, 5 में से 3.5 ऐसा स्टार दूंगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बट ये कि आप पहले 100 में, पहले 10 में हैं, 100 में से आप पहले 10 में हैं, तो यस, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mujtaba is asking, do we need NEET for BSc nursing? यस, लास्ट ईयर ही 2021 का सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि पूरे इंडिया में अगर किसी भी बच्चे को बीएससी नर्सिंग करना है 4 years कोर्स आफ्टर 12 साइंस, तो उसको नीट देना कंपलसरी है। The next question is, what is the fees and time period for becoming a neurologist and cardiologist? देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या जो भी आप एमएस और एमडी की बात कर रहे हैं, ये सब एमबीबीएस के बाद होता है। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए 3-4 तरह के कॉलेजेस हैं। प्योर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंडर में जो कॉलेजेस, जैसे अभी एक साहब, शायद मैंने चैट बॉक्स में एएमयू का जिक्र किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसी तरह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज है, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं। तो इसमें फीस बहुत कम होती है, लेकिन कम होती है मतलब ये कि आप 10,000 से 15,000 पकड़ कर चलिए एक साल की है। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, जहाँ पे फीस 1 लाख रुपए तक की होती है, 70-80 हजार रुपए सालाना होती है। 4.5 साल फीस देना, आप कैलकुलेट कर लीजिए खुद से। उसी तरह से जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो फीस जो है वो 7 लाख से 14 लाख रुपए तक आती है। और अगर आप डीम यूनिवर्सिटीज में आते हैं तो फीस जो है वो 14 लाख से शुरू होती है। ये समझ कर चलिए कि 1 करोड़ का आपका सिर्फ एमबीबीएस में खर्च होगा। उसके बाद में पीजी करना है, पीजी के लिए भी जो है वो नीट देना है। पीजी नीट अलग होता है, डीएनबी के जरिए पीजी एमएस एमडी में एडमिशन मिलता है। उसकी भी फीस प्राइवेट कॉलेजेस में साल की 25 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए होती है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो उसमें फीस जो है आपको 1.5 लाख, 2 लाख रुपए फीस होती है। तो फीस डिपेंड करता है आपके स्कोर पर और आप कहाँ से कर रहे हैं उस पर।
The next question, what are the career options in science that will be in demand after year 2030? जी मैम, Career options in science that will be in demand after year 2030 के बाद. Future demand. देखिए अभी इसीलिए तो पूरा 10 दिन का सेमिनार चल रहा है ना, इसलिए एक क्वेश्चन का आंसर आपको अगर मालूम करना है तो 10 दिन पूरा लेक्चर्स अटेंड कीजिए। साइंस फील्ड के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं और जिसमें आप ये देखिए कि कौन सी फील्ड में अभी रिसर्च चल रहा है। जैसे अभी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, उसी तरह से जो है वो मेकाट्रॉनिक्स है, जैसा मैंने कहा रोबोटिक्स है, फिर उसी तरह से मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल लॉ है, साइबर सिक्योरिटी है, सेफ्टी मैनेजमेंट है, फिर उसी तरह फाइनेंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो है वो एवरग्रीन फील्ड होंगी 2030 में, 2027-28 के अंदर। ड्रोन कैमरा ऑपरेटर्स हैं, अभी जो है वो फ्लाइंग टैक्सी आने वाली हैं, उसी तरह से ऑटोमेटेड जो है वो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन चलने वाले हैं। तो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड जितना भी फील्ड है उसके अंदर जो है वो करियर अपॉर्चुनिटीज आगे बहुत ज्यादा होगी। और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो मतलब जिसमें इंसानों का अमल दखल है, जैसे टेक्सटाइल है, मेडिकल है ना, ये सारी फील्ड, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, ये फील्ड जो कभी खत्म नहीं होने वाली। आर्किटेक्चर है, उसके अंदर फील्ड के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, बट ये फील्ड कभी खत्म होने वाली नहीं। तो कुछ फील्ड्स हैं जो एवरग्रीन फील्ड्स हैं और कुछ फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी का अमल दखल ज्यादा है और वो आगे चलकर बढ़ने वाली है। So there is a question, what are the जी। prospects for psychology in medical field? देखो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में आमतौर पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, और साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो एक्चुअली उन्होंने एमबीबीएस के बाद में पीजी किया होता है। तो जिस तरह से न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जिस तरह से ऑर्थोपैड होते हैं, या फिर जो है गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, उसी तरह से साइकेट्रिस्ट जो है वो पीजी लेवल का कोर्स है, एमबीबीएस के बाद में होता है। लेकिन इनको हेल्प लगती है साइकोलॉजिस्ट की। अगर आप जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर आप है, आपने एमए साइकोलॉजी किया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो आप जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं डॉक्टर्स के साथ में टच में रहकर अपना करियर करने वाले हैं विदाउट मेडिसिन। Is B Pharma a good career option after 12th, science, biology, and what are its prospects? बी फार्मा, हाँ, B Pharma, pharmacy. देखिए अभी अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगी तो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे सीटी इंजीनियरिंग वगैरह की जो देते हैं, उसमें पहले फील्ड जब बढ़ रही है फार्मेसी की, उसके बाद में इंजीनियरिंग का नंबर तीसरा नंबर हो गया। पहले मेडिकल का हो रहा है, फिर उसके बाद में फार्मेसी का हो रहा है, उसके बाद में इंजीनियरिंग का हो रहा है। तो फार्मेसी की भी वैल्यू है, और इसमें भी मैंने कहा कि आज बहुत ज्यादा इंडिया जो ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में बहुत सारी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इंडिया में मौजूद है। तो बड़ा मतलब ये कि आप खुद से रिसर्च करके अपना खुद का प्रोडक्ट, सिप्ला जैसा खुद अगर कुछ करे, प्रोडक्शन अपना खुद का फॉर्मूला वगैरह इजाद करे, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज शुरुआत में अभी बहुत सारी फील्ड्स, क्लिनिकल रिसर्च की फील्ड है, पूरे डॉक्टर्स को ट्रेन करने वाले अभी फार्मासिस्ट ही होते हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो है, बट ये कि यहाँ पर भी कंपटीशन अब बढ़ गया है पहले के मुकाबले। So I have one question from my end. I think it will help all the attendees also. So students interested in science, if they are not able to clear NEET, they join BSc, that is graduation in science. So can you please highlight a few courses after BSc so that they can also be enlightened with this? एक मिनट, देखिए मैंने कहा कि बीएससी के बाद में आप 12 साइंस के बाद में नीट के अलावा जो बीएससी के जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें तो एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से सीबीजेड या पीसीबी या पीसीएम
एम लेकर आप या माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इस तरह के फील्ड्स में करियर कर सकते हैं। उसमें कंप्यूटर साइंस भी आता है, बीएससी आईटी आता है। ये सारे कोर्सेज आप बीएससी लेवल पे कर सकते हैं। अभी कई नए कोर्सेज जो है वो खासतौर पे मुंबई का मैं बताऊं आपको, मुंबई के अंदर एक कोर्स शुरू हुआ है बीएससी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जो SIS साइन के अंदर है, इस साल से वो शुरू होने वाला है। उसी तरह से बीएससी इन पेंट टेक्नोलॉजी है, वो शुरू होने वाला है, या एक्चुअली शुरू हो चुका है ऑलरेडी, अभी MSc उसमें शुरू हो चुका है। उसी तरह से पैरामेडिकल के अंदर बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में बीएससी है, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी में बीएससी है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में बीएससी है, फिर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है जो भी साइंस की ही एक ब्रांच है। उसी तरह से इसके अंदर जो बीएससी जो कर लेगा तो उसके बाद में एमएससी कर सकते हैं, एमएससी इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन मेडिकल जेनेटिक्स, एमएससी इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी, एमएससी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसी तरह से मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, एमएससी इन बायोस्टैटिस्टिक्स है, एमएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, फिर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ है, फिर एमएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी है, एमएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो 12th साइंस के बाद में बीएससी लेवल पे किए जा सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज है, जैसे डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी के साथ साथ रबर टेक्नोलॉजी है, लेदर टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे कोर्सेज भी 12th साइंस के बाद में जो 12th साइंस के स्टूडेंट्स है वो कर सकते हैं, अदर देन मींस बीएससी। The next question, sir, will doing clinical psychology get you a job in hospitals? यस, आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये आमतौर पे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स के साथ में ही काम करते हैं। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स जो है वो कुछ पेशेंट्स को जो है वो काउंसलिंग की जरूरत होती है, और साइकेट्रिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पेशेंट की काउंसलिंग भी करे। तो ये जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो हर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के साथ में 3 से 4 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट भी अपना मतलब क्लिनिक खोलकर इंडिपेंडेंट सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मुंबई के अंदर जॉन बॉस्को का नाम सुना होगा, स्कूल्स है, वो चेन ऑफ स्कूल्स है, उनका खुद का एक साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है। वहां पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो बहुत सारे जो इनके पूरे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो उसके बेसिस पे काउंसलिंग करते हैं। तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जो इस तरह के साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं। कॉलेजेस के अंदर भी जो गर्ल्स हॉस्टल होती हैं उनके कुछ इश्यूज होते हैं, हॉस्टल में बच्चियों की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कॉलेजेस वाले भी हायर करते हैं इस तरह के प्रोफेशनल्स को। हॉस्पिटल्स में भी मिलेगा और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलेगा जॉब। I think I've covered majority of the questions, and जी मैम। yes, I have just concluded. So we have come to the end of the session. Jazakallah khaira for your informative session, sir, on careers in life sciences and medicine. I feel that this session would have surely helped the attendees to get a thorough knowledge about careers in life science and medicine, which they can choose from after completing their 10th grade and +2 with clarity. Before signing off today's session, I would like to inform the attendees that tomorrow we have a session on career in physical sciences and engineering. At the same time, that is 5 p.m. Please do join with your friends and your parents and get benefited. With this, we have come to the end of the session. Thank you so much, sir. Hope to see you again, attendees, attending tomorrow's session. Thank you so much.